Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is business studies of class 12th. It is 5th chapter, that is organizing. Today, let us know that what is organizing, concept of organizing, and what are the different definitions given for organizing by different persons, these economists or behavioral experts. First, what is organizing? Dear students, you know that after planning, it is the second function of management. First is planning, second is organizing. What is organizing? It is the function which creates the relationship among various factors present in an enterprise. किसी भी यूनिट में, बिजनेस यूनिट हो या और कोई यूनिट हो, इसमें डिफरेंट जो ह्यूमन रिसोर्स जो है या डिफरेंट रिसोर्स जो हैं, वेरियस रिसोर्सेज, दिस ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स देम टुगेदर. ऑर्गेनाइजिंग जो है वो उन तमाम रिसोर्सेज को जो किसी भी मैनेजमेंट में होते हैं उनको नज़दीक लाता है, उनको एक साथ बिठाता है काम करने के लिए. रिसोर्सेज में मैन, वुमन, machines, materials and money. This organizing, what is its function? What is organizing? Bringing together or establishing the relationship between various factors in an enterprise. किसी भी enterprise में, किसी भी business unit में मुख्तलिफ factors जो होते हैं, मुख्तलिफ resources जो हैं, उनको नज़दीक लाने का अमल जो है इसे organizing कहा जाता है. So what it does, it brings them together and creates a relationship between them. So this is the specific objective of organizing. When in any enterprise we formulate an objective, this is the second step, that we try to organize the various resources in an organization, so that the goals which have been predetermined, which have been is focused by an organizer, they will be achieved. So the managerial function of organizing, what a manager does, he directs the efforts to achieve the organizational goals. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना कोई गोल बनाता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग एक फैक्टर है. ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, एक मैनेजर जो है उसका ये काम बनता है, सो फॉर एज द ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड, कि वो अपना गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए उन रिसोर्सेज को नज़दीक लाता है और उनको एफिशिएंटली यूज़ करता है, और ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली ही यूजेस different resources so as the organizational goals can be achieved. In other words, organizing is the process of implementing the plans. यानी अब प्लान हमने बनाया है, पहला फंक्शन जो है वो हमने कंप्लीट किया है. अब दूसरा फंक्शन क्या है कि हम प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिफाइन करते हैं मुख्तलिफ लोगों को कि उनको क्या करना है. we give them their respective jobs, working relationships, effectively deploying physical, human, financial resources for achieving organizational goals. या हम उन्हें अपना काम, अपने असाइनमेंट्स देते हैं, अपनी जगह पर उनको फिक्स करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, so that these organizational goals can be achieved. Now, different definition is given in respect of this organizing. Louis Allen, उसका मानना यह है, वो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग को, that is the process of identifying and grouping the work. काम जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में और ग्रुप किया जाता है
काम का ग्रुपिंग किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको ग्रुपिंग किया जाता है, फिर डिफाइन किया जाता है और डेलीगेट किया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। और जिनको ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को डिफाइन किया जाता है ताकि रिलेशनशिप क्रिएट किए जाए, रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ इनएबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, ताकि लोग जो है पूरी अहलियत के साथ, काबिलियत के साथ काम करें इन कंप्लीशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें। यानी लुई एलन का मानना है ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. अब थियो हेमन उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। उसका बिल्कुल सादा अल्फाज में उसने कह दिया है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है ये एक अमल है डिफाइन करने का और ग्रुप करने का एक्टिविटीज़ को, यानी काम जो हैं उनको डिफाइन करता है और उनकी ग्रुपिंग करती है किसी भी इंटरप्राइज में, एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और इन रिसोर्सेज के दरमियान ये जो है अपनी अपनी अथॉरिटी जो है यानी रिलेशनशिप की अथॉरिटी, उसकी हद, उसके अख्तियारात को एस्टेब्लिश करता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप among them. Henry Fayol, one of the most experienced economists, behavioral scientists, he says to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning. Organizing क्या है? एक बिजनेस में हर एक चीज जो एक बिजनेस के लिए फायदा मंद हो उसको वो प्रोवाइड करना, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल, यानी उसको रॉ मटेरियल, मशीन या आलात जो उसके लिए लाजमी हों, कैपिटल जो उसके लिए लाजमी हों, और ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल जो उसके लिए लाजमी, यानी बिल्कुल सादा। तो ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक बिजनेस का उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करना जो उसके काम में उसके लिए फ़ायदा मंद हो। उसमें क्या देता है फंक्शनिंग में? रॉ मटेरियल, machines and tools, capital and personal. These are the three definitions given by Louis Allen, Theo Heman, and Henry Fayol. So I think this is enough for today, that what is organizing and what are the different functions. These definitions given by different authors or experts for organizing. Thanks.